हेलो गाइस, दिस इज़ डीके एंड वेलकम टू माय चैनल डीकेज एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक को हिंदी में पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो है वो साउंड को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, यानी कि बिना उसको सुने। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने उसकी सुनने की जो शक्ति है ले ली, परंतु उसने उसे कुछ असाधारण वापस दिया। What we hear, she feels far more deeply than any one of us. जो हम सुनते हैं वह महसूस करती है किसी अन्य से अत्यधिक गहराई के साथ। That is why she expresses music so beautifully. इसी कारण वह संगीत को इतनी सुंदरता से प्रदर्शित करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो आइए, एक व्यक्ति जो शारीरिक अपंगता के खिलाफ लड़ता है और अपने जीवन को एक सफल कहानी बनाता है के बारे में प्रस्तुत लेख को पढ़ते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थान बनाने के लिए खचाखच भरी भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक 17 वर्षीय छोटी और पतली लड़की जो अपनी आयु से कम दिख रही थी, घबराई हुई तथापि उत्तेजित थी, जैसे उसने आ रही रेलगाड़ी का कंपन महसूस किया। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यह उसका लंदन में स्थित संगीत की सम्मानित रॉयल एकेडमी में पहला दिन था और एक स्कॉटलैंड से आई हुई तरुणी के लिए यह बहुत अधिक भयावह था, परंतु इसे संगीतकार बनने की इस इच्छुक ने एक बहुत बड़ी ललकार का सामना किया था। वह गंभीर रूप से बहरी थी। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers, but by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that
she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन ग्लेनी की सुनने की जो शक्ति थी वो क्रमिक थी। उसकी माँ को याद आता है वे उसका नाम पुकार रहे थे और वह हिलती नहीं थी। मैंने अचानक महसूस किया वह सुन नहीं पा रही थी, इसाबेल ग्लेनी ने कहा। कुछ समय के लिए एवलिन ने अपने बढ़ते हुए बहरेपन को अपने दोस्तों और अध्यापकों से गुप्त रखने का प्रबंध कर लिया, परंतु उस समय जब वह 11 वर्ष की थी उसके लक्षण बुरी अवस्था में आ गए और उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता को उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाने के लिए प्रेरित किया। तब यह पाया गया कि उसकी सुनने की शक्ति लगातार नसों के नष्ट होने से अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी। उन्हें बताया गया कि वह सुनने में सहायता देने पर ठीक हो जाएगी और बहरों के स्कूल में भेज दी जाएगी। सब कुछ अचानक काला लग रहा था, एवलिन कहती है। पैराग्राफ नंबर 3। But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. पर एवलिन छोड़ने नहीं जा रही थी। वह एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए तथा अपनी संगीत में रुचि जारी रखने के लिए स्थिर थी। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन, एक वाद्य यंत्र जिसमें लकड़ी की पट्टियाँ लगी होती हैं, को बजाते देखा और उसने निश्चय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती थी। बहुत सी अध्यापकों ने उसे निरुत्साहित किया, परंतु तबला वादक रॉन फॉब्स उसके सामर्थ्य को पहचानता था। उसने 2 बड़े ड्रमों को विभिन्न स्वरों में बजाकर शुरुआत की। तुम्हारे कानों से मत सुनो, उसने कहा, इसे किसी दूसरी प्रकार महसूस करो। एवलिन कहती है, अचानक मैंने अनुभव किया है कि मैं ऊंचे ड्रम को कमर से ऊपर और नीचे वाले को कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। फोर्ब्स अभ्यास को दोहराता रहा और जल्द ही एवलिन को लगा कि वह निश्चित स्वरों को अपने शरीर के विभिन्न भागों में महसूस किया। मैंने ध्वनियों और कंपनों से अपने दिमाग और शरीर को खोलना सीखा था। बाकी सब केवल निश्चय और कड़ी मेहनत थी। पैराग्राफ नंबर 4। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16,
She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestra work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उस बिंदु से उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वह 16 साल की थी, उसने एक नौजवान ऑर्केस्ट्रा गाना बजाने वालों का समूह के साथ ब्रिटेन की यात्रा की। उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। उसने संगीत बाल अकेडमी के लिए ऑडिशन, एक छोटा प्रदर्शन जिससे निर्देशन निश्चित करता है कि क्या वह योग्य है, उसको बोलते हैं ऑडिशन, दिया और अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। वह क्रमशः बजाने के काम से अपने 3 साल के समय में उसने अनेक बड़े पारितोषिकों यानी कि अवार्ड्स पर अधिकार कर लिया, यानी कि उन्होंने पाया था। पैराग्राफ नंबर 5 एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you'll get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. और इन सब के लिए एवलिन ने वीरता की उपलब्धि का संकेत प्राप्त नहीं किया होगा अगर तुम कठोर मेहनत करते और तुम जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम उसे प्राप्त कर लेते। और उसने शिखर को प्राप्त किया, संसार के सबसे इच्छित वरदान को, 1000 वाद्य यंत्रों पर स्वामित्व प्राप्त करके और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राप्त करके। पैराग्राफ नंबर 6 इट इज़ intriguing to watch एवलिन function so effortlessly without hearing. एवलिन को न सुनने के बावजूद पूरे प्रयास से कार्य करते देखना मन को मोह लेने वाला है। In our 2-hour discussion, she never missed a word. हमारे 2 घंटे के वार्तालाप में वह कभी भी एक शब्द नहीं भूली। Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. झाड़ियों के समान दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे कष्ट दिया। वह हंसी, वह केवल होठ ही नहीं, उसका पूरा चेहरा, मुख्यतः आंखें देख रहा है। She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वह बिना किसी गलती के स्कॉटलैंड देश संबंधी लय में बोली। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. मेरी आवाज़ साफ है क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन वह यह नहीं बताता कि वह किस प्रकार मैनेज की थी फ्रेंच और बेसिक जापानी जो थी
उसको सीखने में, उसके ऊपर जो है मास्टरी हासिल करने में। पैराग्राफ नंबर 7। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. जहाँ तक संगीत की बात है, वह कहती है, यह मेरे शरीर के हर हिस्से से आता है। यह त्वचा में सनसनाहट पैदा करता है, मेरी गालों की हड्डियों में और मेरे बालों में भी। जब वह जल तरंग बजाती है तो उसे आवाज़ का छरियों से होकर उसकी उंगलियों के सिरों तक पहुंचने का एहसास होता है। ड्रम के साथ झुककर वह आवाज़ की गूंज को अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकती है। लकड़ी की स्टेज पर वह अपने जूतों को निकाल देती हैं ताकि कंपन उसके पैरों और टांगों में जा सके। पैराग्राफ नंबर 8। Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. कोई हैरानी नहीं कि एवलिन अपने श्रोताओं को खुश करती हैं। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के एकल संगीत वादक गौरवशाली वार्षिक पुरस्कार से नवाजा गया। ड्रम बजाने के माहिर जेम्स ब्लेड कहते हैं, हो सकता है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति को छीन लिया है, परंतु उसने उसे एक विशेष चीज़ दे दी है जो हम सुनते हैं और महसूस करती है, हमसे कहीं अधिक गहराई से। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी अच्छी तरह से व्यक्त करती है। पैराग्राफ नंबर 9। Evelyn confesses that she is something of workaholic. I've just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians, and Rislin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. एवलिन स्वीकार करती है कि वह काम करने की आदी है। मैंने प्रायः पुराने संगीतकारों से अधिक मेहनत की है,
पर इसके परिणाम भी महान हैं। सामान्य संगीत सभाओं के अलावा एवलिन जेलों और अस्पतालों में भी मुफ्त संगीत कार्यक्रम करती हैं। वह जवान संगीतकारों की कक्षाओं को भी प्राथमिकता देती है। बहरे बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करने वाली संस्था बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है, वह बहरे बच्चों के लिए चमकती हुई प्रेरणा है। वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे नहीं जा सकते। पैराग्राफ नंबर 10। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. एवलिन ग्लेनी पहले ही अपने आयु के लोगों से अधिक पूर्ण सिद्ध हो चुकी थी। उसने नाटक वालों यानी कि बजाने वालों के सामने टक्कर मोल ले ली थी और प्रमाणित किया कि यह बहुत अधिक चल सकती है। वह उन्हें जो विकलांग है ईश्वर प्रेरणा देती थी। आदमी जो उसकी ओर देखते और कहते, अगर वह इसे कर सकती है मैं कर सकता हूँ, और जो किसी से कम नहीं, वह हजारों को अति विशाल असाधारण प्रसन्नता प्रदान करती थी। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैप्टर को समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से 2-3 बार सुने, अपने बुक के साथ लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें, और जो पैराग्राफ है उसी में वर्ड मीनिंग्स भी हैं, उनके अर्थ हैं। ऐसे मैं बुक के ख़त्म होने के बाद सारे चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग्स की एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।